Welcome student in third session from your textbook chapter number 5 periodic classification of elements. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the present basis for the classification of elements, modern periodic table and characteristic of the period. So today we are going to discuss about the characteristic of groups. In the characteristic of groups we will discuss the variation of some of the important properties of elements like the number of valence electrons, size of atoms, metallic character, chemical reactivity and nature of oxides on moving down in a group of the periodic table, that is on moving from top to the bottom, a vertical column of the periodic table. Okay, so let us start with the variation in the number of valence electron in groups. So first, valence electrons. All the elements of a group of the periodic table have the same number of valence electrons. Means group में एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल में तो उन सब में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं. और आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट, मीन्स लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल लाइक दैट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम okay have one valence electron each in their atoms. Okay, so the atom of group 1 elements lithium, sodium एंड पोटेशियम कैन लॉस देयर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लॉस करते हैं. जो लास्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो दैट इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, सो कैन लॉस देयर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म पॉजिटिव आयन लाइक लिथियम positive, sodium positive and potassium positive respectively having one unit positive charge. So group 1 elements are monovalent. Monovalent means having valency of 1. Clear? And ionic in the chemical reaction. So the hydrogen element which has been placed at the top of group 1 in the periodic table, okay, has also one valence electron in the atoms and also forms positive ion, that is H plus. So we cannot show hydrogen in this table because it is a non-metal, whereas all other elements of this group are alkali metal. क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है और बाकी ये सभी कैसे अल्कली मेटल है. ओके, फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट ऑन मूविंग डाउन इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, अब ये ग्रुप 1 है और इसमें जैसे आप डाउन साइड में मूव करोगे, ओके, सो मूविंग डाउन in a particular group of the periodic table the number of valence electron in the elements remains the same. तो इन सब में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में सेम, सेल्स का नंबर बढ़ते जा रहा है बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सभी में 1 ही रहेंगे. ओके, नाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2. ओके, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है. All the elements of group 2 have 2 valence electrons each in their atoms. For example, the elements beryllium, magnesium and calcium of group 2 of the periodic table have 2 valence electrons each in their atoms. Atoms of group 2 elements beryllium, magnesium, calcium can lose their 2 valence electron. तो ये जो 2 valence electron है उनके लास्ट सेल्स में वो easily लॉस कर सकते हैं. To form the positive ion means beryllium 2 positive, magnesium 2 positive, calcium 2 positive, okay, respectively, having 2 units of positive charge. So group 2 elements are divalent having valency of 2, क्योंकि ऐसी 2 है इसलिए इनको divalent कहते हैं. Okay, and ionic in their chemical reactions. Group 13 elements have 3 valence electron each. Group 14 elements have 4 valence electron each. Group 15 elements have 5 valence electron and group 16 elements have 6 valence electron each in their atom. Mean 13 में 3 valence electron होंगे, 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे एंड ग्रुप 16 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ईच देयर एटम्स. फॉर एग्जांपल देखो इसमें सभी में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. द हेलोजन एलिमेंट्स ग्रुप 17, अब 17 ग्रुप को हेलोजन एलिमेंट कहते हैं. ओके, इन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लियर? इन ईच इन देयर आउटरमोस्ट सेल मीन्स इसके आउटरमोस्ट सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं. क्लियर दिस वन? तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7. Clear? The atoms of group 17 like fluorine, chlorine, bromine and iodine have 7 electron each in their valence. So group 17 accept 1 electron easily to complete their octet. तो मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेते तो इनका ऑक्टेट इजीली कंप्लीट हो जाता है.
ओके, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट होते हैं सेल में तो उसे ऑक्टेट कहते हैं। क्लियर। सो ऑक्टेट एंड फॉर्म निगेटिव आयंस, एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसमें निगेटिव चार्ज आता है। फॉर्म निगेटिव आयंस लाइक फ्लोरीन निगेटिव, ब्रोमीन निगेटिव एंड आयोडीन निगेटिव हैविंग 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज, क्योंकि वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, इससे उसमें 1 यूनिट निगेटिव चार्ज होगा। सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर मोनो वैलेंट एंड फॉर्म निगेटिवली चार्ज आयन, दे आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। तो ये सभी एलिमेंट्स कैसे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर दिस वन। All the elements of group 18 have 8 valence electron, okay, each in their atoms except helium, okay, which have only 2 valence electron in its atom, क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए उसके लास्ट वैलेंस सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ओके, द आउटरमोस्ट सेल्स ऑफ द एटम्स ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो, ये 8 मीन्स ऑक्टेट का कंप्लीट है, तो ऑलरेडी ये फिल्ड रहती है। ओके, सो दीज एलिमेंट्स हैव नो टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है उनका लास्ट सेल कंप्लीट रहता है, ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल पोजिशन है, तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते और ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करते। ओके, so these elements have no tendency to lose or gain electron. Due to this, the elements of group 18 are zero valent, having zero valency. Okay, इसलिए इनको क्या कहते हैं, zero valent, zero valency and unreactive, क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें न तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते और न ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करते। क्लियर दिस वन। सिंस ऑल The elements in a group have similar electronic configuration, देखो इनका similar electronic configuration है, हीलियम 2, नियॉन 28, क्योंकि इसका 10 एटॉमिक नंबर है, ऑर्गन 18, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, सेल्स का नंबर बढ़ रहा है बट उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है। दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते तो वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते। सो दस एलिमेंट्स इन ए ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो इफ सम एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the outermost cells of their atoms, then they belong to the same group of the periodic table. So means outermost cells में अगर same number of electron present है, okay, in their atoms, so then they belong to same group. तो ये सभी एक ही ग्रुप में belong करेंगे। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर भी आप उनका ग्रुपमेंट को बता सकते हो, ओके, कि वो जितने भी एलिमेंट है वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। क्लियर दिस वन। So then they belong to the same group of the periodic table. The elements in a group do not have consecutive atomic number. और जो इसमें ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उसमें consecutive atomic number नहीं होता है। consecutive means continuous 1 2 3, जैसे पीरियड्स में continuous atomic number रहता था बट ग्रुप में continuous atomic number नहीं रहता है। क्लियर दिस वन। जैसे इसमें हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर, नियॉन का 10 है, ऑर्गन का 18 है और क्रिप्टॉन का 36 है। क्लियर दिस वन। हाउ टू फाइंड द ग्रुप नंबर। ओके, अब आप एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो ऑफ एन एलिमेंट, ओके, इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मीन्स अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पता है तो उससे आप ग्रुप नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो। द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका ग्रुप नंबर होगा। इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, अगर इसमें वैलेंस जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ओके, देन ग्रुप नंबर इज 1। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो ग्रुप नंबर भी 1 होगा। जैसे आपको दे जाए कि लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि वो ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ओके, देन ग्रुप नंबर इज 2। क्लियर दिस वन। जैसे मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हो कि वो ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। क्लियर दिस। सेकेंड ट्रिक है द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग मोर देन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 और 2 तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 को बिलोंग करता है। बट मोर देन 2, ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग मोर देन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। मीन्स जितना भी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसमें आपको 10 प्लस करना है। क्लियर दिस वन। सो देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द ग्रुप नंबर। क्लियर दिस वन। मीन्स जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा मोर देन 2, वी हैव टू प्लस 10 टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन वी विल गेट द ग्रुप नंबर।
क्लियर. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3. अगर किसी का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है देन ग्रुप नंबर इज 3 + 10 13. तो वो किसको बिलोंग करे, 13 ग्रुप को बिलोंग करेगा. ओके. इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 देन ग्रुप नंबर इज 14, क्योंकि उसमें आपने 10 प्लस किया, 4 + 10 14 आ गया. इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 देन ग्रुप नंबर इज 5 + 10 15. If number of valence electron is 6 then group number is 6 + 10 16. If number of valence electron is 7. अब यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, सभी में 7 है. अब 7 में आप 10 प्लस करो तो क्या आ जाएगा 17. तो आप इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर इजीली पता कर सकते हो. क्लियर दिस वन. इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है देन ग्रुप नंबर इज 8 + 10, इट मीन्स दैट 18. देयर इज हाउएवर वन एक्सेप्शन टू दिस रूल. अब ये रूल्स में एक एक्सेप्शन है, जैसे कि देख पा रहे हो द नोबल गैस हीलियम. तो ये जो हीलियम है वो नोबल गैस है और इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ओके. सो इन के सेल ओनली, इसमें एक सेल रहती है के सेल. सो बट इट्स ग्रुप नंबर इज 18. तो ये एक्सेप्शन है. वैलेंसी. सिंस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए ग्रुप इज द सेम, okay, that valence electron determine the valency. All the elements in a group have the same valency. Means group 1 में अगर जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो उनकी वैलेंसी कैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे रहते, सेम. ऑलरेडी वी डिस्कस इन दैट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 element like lithium, sodium and potassium etc. all have 1 valence electron each. So all the elements group 1 have the same valency of 1. So the main group of periodic table and the valencies of their elements are valency of group 1 element is 1, valency of group 2 elements is 2. means group 1 में जितने भी element होंगे उनकी valency 1 होगी, group 2 में जितने भी element होंगे उनकी valency 2 होगी, ग्रुप 13 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसकी वैलेंसी 3 होंगी, ग्रुप 14 में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनकी वैलेंसी 4 होंगी. वैलेंस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज 3. ओके. वैलेंसी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज 2. वैलेंसी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इज 1 एंड वैलेंसी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट इज 0. ओके. क्योंकि उसमें सभी ऑक्टेट कैसे उनके कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं. क्लियर दिस वन. साइज ऑफ एटम्स. ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस. मींस जैसे से आप डाउन साइड मूव करोगे तो साइज ऑफ एटम कैसा होगा, इंक्रीज होते जाएगा. क्लियर दिस वन. सिंस द साइज ऑफ एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एटॉमिक रेडियस. क्लियर. तो एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट करता है साइज. सो वी कैन ऑल्सो से that on going down in a group of the periodic table the atomic radius of elements increases. तो atomic radius कैसे होते जा रही है, increases होते जाएगी, तो उसका size भी increase हो रहा है. For example when we have down from top to bottom in a group 1, अब आप से bottom में move करोगे, okay, one of alkali metals, then the size of atoms increases gradually from lithium to francium. The smallest atomic size will be found at the top of a group, whereas the largest atomic size found in the lowest part of a group. जो smallest है वो top में found होंगी एटम की साइज, और लार्जेस्ट है वो बॉटम में फाउंड होगी. क्लियर दिस वन. फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप 1 of alkali metal lithium is at the top of the group, so it is the smallest atom, whereas the francium atom is the bottom of the group and hence it is the biggest atom is group of the periodic table. Clear this? So when we move from top to bottom in a group, a new cell of electron is added. मीन्स जैसे जैसे आप मूव करते जाते हो डाउन साइड में तो न्यू सेल्स उसमें एडेड होते जाता है. ओके, आपको पता है कितनी सेल है, K11 4 सेल्स आर देयर. क्लियर. जैसे जैसे आप मूव करते जाते हो तो डाउन साइड तो सेल का नंबर उनका बढ़ते चले जाता है. ओके. व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप और न्यू सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम्स ऑफ एवरी स्टेप. इन दिस वे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स इन द एटम्स इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यू टू विच द साइज ऑफ एटम्स ऑल्सो इंक्रीजेस. क्लियर दिस वन. तो साइज क्यों इंक्रीजेस होते जा रहा है, क्योंकि उसमें सेल्स का नंबर बढ़ते जा रहा है और सेल्स के नंबर बढ़ेंगे तो साइज भी कैसा होगा, इंक्रीज होते जाता है. क्लियर दिस वन. फॉर एग्जाम्पल लिथियम एटम एज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन सेल्स. अब लिथियम में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन सेल्स है. ओके. KNL in it as a sodium atom has 3 electron cells, KLMN in it. Since a sodium atom has 1 more electron cells than a lithium atom, therefore a sodium atom is bigger in size than a lithium atom. Clear this? We have just given the example of group 1 element in other group also. So the size of atoms increases on going down in the group. For example, group 17.
अब इसमें ग्रुप 17 इलेमेंट्स का एग्जांपल लेते हैं. ओके, सो इन ग्रुप 17 हेलोजन, जैसे ही ग्रुप 17 अगर बोले तो आपको ये समझ जाना है कि हेलोजन ग्रुप से. ओके, so in group 17 of halogens, the atomic size increases on going down from fluorine to iodine. This is indicated by the atomic radii of group 17 elements. Thus, out of fluorine, chlorine, bromine, and iodine elements, fluorine atom is the smallest atom. Fluorine atom is the smallest atom. ये आपको एटॉमिक रेडाई भी दिख रहा है. ओके, सो फ्लोरीन एटम की सबसे कम एटॉमिक रेडाई है, तो फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम, वेयर इज द आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट इन साइज, क्योंकि आपको दिख रहा है इसकी एटॉमिक रेडाई कितनी 133. नेक्स्ट, मेटेलिक कैरेक्टर. ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, डाउन साइड मूव करोगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएगा. For example, we move down in group 1 of the periodic table, the metallic character increases from lithium to francium. Okay, this one. Thus, in group 1 of alkali metal, lithium is the least metallic element, whereas the francium is the most metallic element. It is obvious that the greatest metallic character is found in the element and in the lowest part of a group. So, most metallic character कहाँ पे found होता है? Downside in a group. Clear this one? Instead of using the term metallic character, we can also use the term electropositive character in this discussion. So we can also say that on going down in a group of the periodic table, the electropositive character of element increases. Okay, means electropositive character कैसा होगा? Increase होते जाता है. Clear this one? So in group 1 of the periodic table, lithium is the least electropositive element, whereas francium is the most electropositive element. Clear? As we go down in a group of periodic table, one more electron cell is added. जैसे जैसे आप डाउन साइड होते जाओगे मूव, तो वन सेल न्यू सेल्स इलेक्ट्रॉन की एडेड होते जाती है एवरी स्टेज पे. ओके, एंड द साइज ऑफ एटम ऑल्सो इंक्रीजेस, सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स मोर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर हो जाएंगे एंड मोर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से वो ज्यादा दूरी पे हो जाते हैं. एंड होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. न्यूक्लियस की जो होल्डिंग कैपेसिटी रहती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो डिक्रीज होते जाती है. सो ड्यू टू दिस द एटम कैन लॉस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली. तो न्यूक्लियस की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो डिक्रीज हो जाती है, तो इसी वजह से इजीली वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन दे देता है. ओके, एंड फॉर्म द पॉजिटिव आयन. इसीलिए पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ही ज्यादा पॉजिटिव ions form होगा. Clear this one? And hence the electropositive character increases. Clear this one? From this discussion we conclude that जैसे down move करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा से ज्यादा देगा और electropositive character उसमें increase होते जाएगा. On going down in a group of periodic table, the electronegative character means non-metallic character of the elements decreases. और डिक्रीज कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गो डाउन इन ए ग्रुप 17. अब ग्रुप 17 में जब आप डाउन साइड में मूव करते हो, ओके, अब द हैलोजन एलिमेंट्स द इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएगा. ओके, फ्रॉम फ्लोरीन टू iodine. Thus out of fluorine, chlorine, bromine and iodine, fluorine is the most electronegative element, where iodine is the least electronegative elements. So the decreases in electronegative character of elements on going down in a group of the periodic table. Okay, so as we go down in a group of the periodic table, one more electron shell is added. तो इसमें आपको ये तो पता ही है कि जैसे जैसे आप डाउन साइड मूव करोगे तो न्यू सेल एडेड होते जाती है इलेक्ट्रॉन की टू द एटम एट एवरी स्टेप, एंड साइज ऑफ द एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग, और साइज भी इंक्रीज होता है. सो ड्यू टू दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम, द न्यूक्लियस गोज मोर डीप इनसाइड द एटम. तो न्यूक्लियस किधर जा रहा है? डीपली सिचुएटेड होते जा रहा है. ओके, इनसाइड द एटम. सो द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. तो जो न्यू इलेक्ट्रॉन जैसे उसमें जैसे जैसे आप डाउन साइड में मूव करोगे तो न्यू सेल्स एडेड हो रही है, फिर न्यू इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे. तो जो न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से वो डिक्रीज होते जा रहा है. सो ड्यू टू विच द एटम्स कैन नॉट फॉर्म नेगेटिव आयंस इजीली एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस. So from this discussion we conclude that the tendency of an atom to gain electrons decreases on going in a group of the periodic table. तो जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो कम होते जा रही है. तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो उसमें निगेटिव चार्ज नहीं आएगा.
Clear this one? Francium is the most electropositive element and fluorine is the most electronegative elements. Clear this one? Now next one, chemical reactivity. All the elements of group in the periodic table have similar electronic configuration. On having the same number of valence electron, तो अगर similar electronic configuration है तो same number of valence electron होंगे. So all the elements of group show similar chemical properties. So there is however a regular change in the chemical reactivity of elements in a group. So first, the chemical reactivity of metal increases on going down in a group of the periodic table. Means जब जैसे ही आप ग्रुप में डाउन साइड मूव करोगे तो केमिकल रिएक्टिविटी वो कैसे होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएंगी. क्लियर दिस? फॉर एग्जांपल in group 1 of alkali metals the chemical reactivity increases from lithium to francium. Okay, chemical reactivity कैसे होती जाएगी, increase होती जाएगी. So thus in group 1 of the periodic table lithium is the least reactive alkali metal whereas francium is the most reactive alkali metal. If however we consider only the three most common alkali metals, that lithium, sodium and potassium, तो जब ये थ्री आप कॉमन एलिमेंट्स लेते हो देन आउट ऑफ थ्री मेटल्स लाइक लिथियम इज केमिकली लिस्ट रिएक्टिव whereas potassium is the most reactive. Increases in the reactivity of metals on going down in a group. As we move down in a group, जैसे आप साइड मूव करोगे, okay, so as we move down in a group of metal element, the size of their atoms goes on increasing. Due to increase in the size of atoms, the valence electron of metal atom, okay, becomes more and more far away from the nucleus and hence can be removed easily. Thus we go down in a group of metals, the tendency of their atoms to lose electrons increases. तो वो easily जब उनकी अट्रैक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है न्यूक्लियस की वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन से, तो एटम जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है एंड हेंस देयर केमिकल रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस. तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होते जाएगी. सेकेंड, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल. अब नॉन मेटल का डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन इन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो ये जो मेटल का था वो इंक्रीज होती है और जो नॉन मेटल है वो डिक्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप 17 ऑफ हेलोजन एलिमेंट्स विच आर नॉन मेटल्स, तो ये सब नॉन मेटल है. Okay, 17 elements. So the chemical reactivity decreases from fluorine to iodine. Thus, in group 17 of the periodic table, out of 4 common halogens, the fluorine, chlorine, bromine, and iodine, fluorine is the most reactive, whereas iodine is the least reactive. The decrease in reactivity of non-metals on going down in a group. As we move down in a group on non-metal elements, the size of their atoms goes on increasing. Due to increase in the size of atom, the nucleus of atom goes more and more deep inside it and hence the attraction for the incoming electron decreases. So thus we go down in a group of non-metals, the tendency of their atoms to gain electron decreases, due to which their reactivity also decreases. Clear this one? Now next one, nature of oxide. On going down in a group of the periodic table, there is no change in the nature of oxide of element. जब आप डाउन साइड मूव करते हो तो कुछ भी चेंजेस नहीं होते. द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप इज द सेम. तो फॉर एग्जाम्पल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम फॉर्म बेसिक ऑक्साइड. तो ये सभी क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं. वेयर एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन form acidic oxide. Point, merits of modern periodic table. The modern periodic table is based on the atomic number of elements, which is the most fundamental property of element. Second, the modern periodic table help us understand why element in a group shows similar properties but elements in different groups show different properties. And next, the modern periodic table explain the reason for the periodicity in properties of element. Next one, the modern periodic table tell us why the properties of elements are repeated after 2, 8, 18 and 32 elements. There are no demerits in the arrangement of elements in the modern periodic table. Now advantages of the periodic table. The periodic table has made the study of the chemistry systematic and easy. It acts as an aid to memory. Second, it is easier to remember the properties of element if its position in the periodic table is shown. Now third, the type of compounds formed by an element can be predicted by knowing its position in the periodic table. Now fourth, a periodic table chart is used as a teaching aid in chemistry in school and colleges. Thank you.